नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 7 यह भी एक પરીક્ષા જેનું સાહિત્ય પ્રકાર છે એકાંકી। દરેક વિદ્યાર્થી પાઠ્યપુસ્તકમાં પાઠ 7 ખોલીને તૈયાર રાખે। પાઠ 7 यह भी एक પરીક્ષા સુરેન્દ્ર અંચલજી એકાંકીના લેખક છે। આપણે બંને દ્રશ્યનો અભ્યાસ કરી લીધો કે તમે અહીં ભણી જોઈકા કે પ્રથમ દ્રશ્યમાં શું આવે છે। તો પ્રથમ દ્રશ્યની શરૂઆત બજારના ચિત્રથી થાય છે કે એવું દર્શાવે છે કે બજારમાં લોકો આવજાવ કરી રહ્યા છે અને એક બાળક આવે છે એ પછી કહે છે કે બૂટ પાલિશ કરી આપો। પછી રાહગીર આવે છે, એને બૂટ પાલિશ કરાવવા નથી। પછી હાકર આવે છે, ફેરીઓ આવે છે છાપું વેચવા માટે, એ તાજી તાજી ખબરો વાંચીને સંભળાવે છે એટલે લોકો તે લેવા માટે આગળ આવે છે। ત્યાં રસ્તામાં ચાવાળો મળે છે અને બાળક બંને ભટકાઈ જાય છે, અથડાઈ જાય છે। ચાવાળાના કપને તૂટી જાય છે અને બંને વચ્ચે બોલચાલ થાય છે અને ત્યાં વચ્ચે એક ભિખારી આવે છે। તો એ બાળક પાસે માગે છે, તો એ બાળક છે એની પાસે માગે છે કે ભાઈ આમાં મારે પિક્ચર જોવાના પૈસા પણ આમાં ઓછા પડે છે, તું આપીશ એમ કહીને આગળ ચાલે છે। પછી સાયકલવાળા ભિખારી ભટકાય છે અને તેને ખૂબ જ દર્દ થાય છે, પગમાં વાગી જાય છે પણ કોઈ ધ્યાન આપી રહ્યા હોતા નથી। ભિખારી છે એ રસ્તા ઉપર વચ્ચે બધાને બોલાવી રહ્યા છે પણ કોઈ તેને મદદ કરવા માટે આગળ આવતા નથી। પણ ત્યાં એક વિદ્યાર્થી આવે છે અને એ વિદ્યાર્થી આ વૃદ્ધ ભિખારી છે તેને રસ્તાની એક બાજુ બેસાડે છે, હોસ્પિટલે લઈ જાય છે, તેની સારવાર કરાવે છે, ઈલાજ પણ કરાવે છે અને એક તરફ છે પરીક્ષાનો સમય થઈ જાય છે। પછી ત્યાંથી બીજું દ્રશ્ય ચાલુ થાય છે કે અહીં તેમના આચાર્યને ચિંતા થાય છે કે અધ્યાપક જ્યારે કહે છે કે ભાઈ હજી દેવેન્દ્ર આવ્યો નથી, ત્યારે ઘરે ફોન કરીને જણાવે છે તો કે ઘરે તોથી એ 1 કલાક જેટલો સમય થઈ ચૂક્યો છે, એ નીકળી ગયો છે। પછી કહે છે કે એ આવે ત્યારે ઓફિસમાં મોકલજો અને આવે છે ત્યારે તેને થોડીક વાર ખીજાય છે અને કહે છે કે આટલું બધું મોડું કેમ થયું, ત્યારે એ બધી વાત કરે છે। પછી આચાર્ય તેમને શાબાશી આપે છે, એના ઘરે ફોન કરે છે અને તેમના પપ્પાને પણ અભિનંદન આપે છે। તો આ હતા બંને દ્રશ્ય। ત્યાર પછી આપણે અભ્યાસના પ્રશ્ન છે એ આપણે 1 થી 4 પ્રશ્ન છે એ આપણે અભ્યાસ એમનો કરી લીધો। હવે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર દીजिए। તેમાં પહેલું છે કે બૂટ પાલિશ વાલે ને રાહગીર से क्या कहा। તો તેનો જવાબ આવશે बूट पालिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। तीसरा प्रश्न देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। तो अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया। तो अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करहा रहा था, देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठा दिया, जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी, सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था,
इसलिए देवेंद्र ने उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। 5मो प्रश्न है कि प्राध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया। प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था। वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત વાક્ય કોણ કિસે कहता है लिखिए। પ્રશ્ન નંબર 2 માં કોણ કોને કહે છે તેમાં પેલું છે કે अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो यह वाक्य चाय वाला एक बालक से कहता है। पहला में उसे चाय वाला एक बालक से कहता है। बीजो प्रश्न है जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। तो भिखारी विद्यार्थी से कहता है, विद्यार्थी यानी देवेंद्र से कहता है, भिखारी विद्यार्थी से कहता है। त्रीजू है चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है, देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। त्यार पछी चौथू है सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। एक अध्यापक प्रधान अध्यापक से कहता है। यह वाक्य एक अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। 5मू शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। प्रधानाध्यापक विद्यार्थी से कहते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यार्थी यानी देवेंद्र से कहते हैं। 6ठू है जूते चमका दूं शानदार कर दूंगा। तेमा जवाब आवशे बूट पालिश वाला राहगीर से कहता है। बूट पालिश वाला राहगीर से कहता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज फकरो आपेलो छे एमां गुजराती करवानुं छे। एक बार एटले एक वखत अवंती के देश में, अवंतीना देशमां, नाम छे अवंतीना देशमां 3 व्यापारी आए। 3 व्यापारीओ आव्या। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की। तो एनुं गुजराती थशे राज दरबार में तेमणे विनंती करी कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। विनंती करी के तेमना प्रश्नोना जवाब आपवामां आवे। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्न के उत्तर नहीं दे सका। कोई पण दरबारी व्यापारीओना प्रश्नोना जवाब आपी सक्या नहीं। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए, एटले सुधी के राजा पण विमासण में पड़ी गया। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए। त्यारे कोईए कह्यु के अवंती ने बोलाववामां आवे। वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है कि तेज एमना प्रश्नोना जवाब आपी सके छे। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। राजाए अवंती ने बोलाववानी आज्ञा करी। हाथ में लाठी हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। हाथ में लाकड़ी लईने पोताना गधेड़ा पर बेसीने अवंती दरबार में पहुंच्यो। त्यार पछी इतना जानिए। तो अहीं जे पेलू चित्र बताई छे आ ए इंडियन एयरलाइंस नु छे। यह इंडियन एयरलाइंस का निशान है। हवाई डाक पर यह चिन्ह होता है। त्यार पछी बीजू चित्र
ट्रैफिक सिग्नल। यह उपकरण ट्रैफिक सिग्नल का है। इसमें पीले, लाल और हरे रंग की बत्तियां होती है। इन रंगों की बत्तियों की सूचना के अनुसार वाहन रुकते या सड़क पार करते हैं। तीजू, न्याय। यह न्याय की देवी की मूर्ति है। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। वह निष्पक्षता का तथा तराजू न्याय का सूचन करते हैं। ત્યાર પછીનું જે ચિત્ર છે, फूल तोड़ना मना है। बगीचे या फुलवारी में लगी इसी सूचना का अर्थ है फूल न तोड़े। पांचमું चित्र છે, पांचमું चित्र છે, कूड़ा कूड़ेदान में डाले। इस निशान का अर्थ है कि कूड़ा यहाँ रखे, कूड़ेदान में ही डाले। પછી આ જે चित्र છે, छठू, शांति रखिए। तो इस चित्र का अर्थ है कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखे। अस्पतालों के पास यह चित्र रखा जाता है। ત્યાર પછી पुनरावर्तन के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तेमा पहलू है कि हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। बीजो प्रश्न है, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। ત્યાર પછી ત્રીજો प्रश्न, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तो पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। ત્યાર પછી समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। पांचवा प्रश्न है कि खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है। इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। ત્યાર પછીનો प्रश्न है, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करहा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी, वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पांव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र ने उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે કે निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला આપણે આ પેરેગ્રાફ વાંચીશું कि जीवन में खेल बहुत जरूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हमें
कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન આપેલા છે, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो खेल તેનો જવાબ આવશે खेल से मनोरंजन होता है। અહીં આપેલું છે खेल से मनोरंजन होता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम बीमार नहीं पड़ते, खाया हुआ अन्न पच जाता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, खेल के अभाव में क्या होता है? तो खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है, भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता, इससे हमारा शरीर स्वास्थ्य नहीं रहता, स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार और कमज़ोर रहते हैं। पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए, क्यों? तो हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं, इससे हमें अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। तो खेल का महत्व अथवा खेल से लाभ, कोई पण एक तमे लखी सको, खेल का महत्व अथवा खेल से लाभ। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 छे, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। विज्ञान का महत्व, देवेंद्र की मानवता और हसन का सच्चा न्याय। त्यार पछी मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, कहावतों का अर्थ लिखिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, आसमान से गिरा खजूर में अटका तो एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना, जैसी करनी वैसी भरनी, अपने किए हुए बुरे काम का फल भुगतना। त्यार पछी प्रश्न 6 पेज नंबर 46 में कि चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। तो आ चित्र उपरथी कहानी बनावानी छे। पहला चित्र में कि एक जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की लहर आई। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। आ चित्र में पहला चित्र में तमे जोई सको। त्यार पछी तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। ये तमे आ बीजा चित्र में जोई सको छो। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशान साधा। चींटी ने यह देखा, वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। ये त्रीजा चित्र में तमे जोई सको छो। उसने शिकारी के पैर में काट लिया। चौथा चित्र में जोई सको छो। शिकारी दर्द से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8 छे।
7मो प्रश्न है कि आप हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। जागना, नहाना, खाना, पढ़ना लिखना, देखना, खेलना, सोना आवा शब्द लईने तमारे वाक्य प्रयोग करवानो छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपणे बंने साथे हिंदी નું एक वाक्य અને गुजरातीનું एक वाक्य ए रीते। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। थोड़ा दिवस पछी अली ख्वाजा मक्कानी यात्राएथी पाछो आव्यो। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। घर में पोतानो सामान मूकीने ते सीधो वाजिद ने घेर गयो और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई अने पोतानी यात्रानी बधी बात करी। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। पछी तेलनो घड़ो लईने ते घरे आव्यो। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ज्यारे तेणे घड़ाનું तेल काढीने जोयुं तो तेना पग नीचेनी जमीन ज सरकी गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। ते माथुं पकड़ीने बेसी गयो कारण के घड़ामां एक पण सोना मोहर न हती। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। ते विचारवा लाग्यो कि हवे शुं करवुं જોઈએ। तो અહીં પુનરાવર્તન પણ પૂરું થાય છે અને પાઠ 7 પણ પૂરું થાય છે। ત્યાર પછી ખેલે હમ ખેલ એ છે રમત છે। વિરોધી સમાનાર્થીને લિંગ બદલવાના, પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ એ પ્રમાણે। તો અહીં પુનરાવર્તન અને પાઠ 7 પૂરું થાય છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।